crispy too. हमें अपना खाना कितना अच्छा लगता है ना जब वो crispy होता है. Same with our language. We love our language when it's crispy and impressive. और आपको पता है आपकी language को impressive और crispy कौन बनाता है? None other than idioms. So today's lecture is all about food idioms. Hello guys, welcome back to our channel. And today I am Kajal presenting you one more informative lecture that is all about idioms. But before that, I want you to quickly grab your notebook and pen because I don't want you to miss anything from it. So let's begin on that note. The first one is apple of one's eye. सुना है कभी apple of one's eye? अच्छा, आंखों का तारा तो सुना ही होगा. जब हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा प्यारा होता है हम उसको बोलते हैं तुम मेरी आंखों का तारा हो. You are apple of my eye. इसका मतलब होता है जब आप किसी के बहुत fond of होते हो, जब आप किसी के बहुत शौकीन होते हो. सपोज अगर मुझे बोलना है कि वह अपनी मम्मी की आंखों का तारा है तो मैं कैसे बोलूँगी? He is apple of his mother's eye. I hope you are also apple of someone's eye. Let's move to the next one. Be nuts about. It means when you are very energetic about something. आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही enthusiastic हो, बहुत ही उत्साहित हो. Suppose एक friend है मेरी, उसका नया project है और वो बहुत enthusiastic है. So I can say that she is nuts about her new project. Are you nuts about this new video? Let's move to the next one. Bread and butter. I guess you know that. Bread and butter is rosy roti. We use this term for livelihood. जब हम कहीं से रोजी रोटी अपना घर चलाते हैं उसको हम bread and butter बोलते हैं. Suppose अगर मुझे बोलना है मैं काम का एक और दिन मिस नहीं कर सकती यार, मेरी उससे रोजी रोटी चलती है. I cannot miss another day of work because that is my bread and butter. Moving on to the next one. Butter someone up. मक्खन लगाना किसी को. मक्खन लगाना मीन्स जब आप किसी को काम निकलवाने के लिए उसकी तारीफें करते हो ना तो butter someone up होता है. When you please someone so as to get something in return. जैसे बचपन में किया था ना, पापा मम्मी को मक्खन लगाया था ताकि ट्रिप के लिए मान जाएं. Same I tried. I tried to butter up my father before seeking permission for the trip. Let's see the next one. Born with silver spoon. कभी सुना है ये वाला Born with silver spoon? अच्छा ये तो सुना होगा यार, तू तो बहुत अमीर परिवार से है तो ये उन्हीं के लिए यूज होता है. The people who are from rich family, they are wealthy enough, they are affluent enough, and we say you are born with silver spoon. अगर मुझे बोलना है मेरी फ्रेंड शनाया, उसको कोई दिक्कत नहीं है लंदन जाने में क्योंकि वो अमीर परिवार से है. शनाया can afford to go to London as you know she is born with silver spoon. So if your friends are born with silver spoon, you can tell them. Next is bitter pill to swallow. बिटर पिल से आपको लगता है ना कि ये बात पचानी मुश्किल है. हाँ, इसका मतलब यही है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अनएक्सेप्टेबल है, बैड है और वो फैक्ट है और उसको अब आपको अपनाना ही पड़ेगा और आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते. सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट. सपोज इफ आई से वॉचिंग हिज फ्रेंड गेटिंग प्रमोटेड वॉज अ बिटर पिल फॉर हिम टू स्वैलो. मतलब जब उसने देखा कि उसका फ्रेंड प्रमोट हो रहा है उसके लिए बात पचानी बहुत मुश्किल थी. और वी कैन ऑल्सो से दैट लूजिंग अ लव्ड वन इज अ बिटर पिल टू स्वैलो. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. काउच पोटैटो. डू यू नो व्हाट इज काउच? काउच होता है सोफा और जब हम सोफे पे बैठ के बिल्कुल पोटैटो बन जाते हैं ये उनके लिए यूज होता है. Like lazy person who spends lot of time in sitting and watching something. Suppose you know someone जिसने जब से Netflix का सब्सक्रिप्शन लिया है वो couch potato बन गया. And we are saying he has become a couch potato since he has subscribed to Netflix. मतलब couch potato means lazy, lethargic हो गया है वो बहुत ज़्यादा. The next one, cream of the crop. Cream सुना है ना? Cream मक्खन best होता है जो, तो क्रीम ऑफ द क्रॉप भी होता है बेस्ट पीपल. एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइक अगर वो दो एम्प्लॉई हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है, हम बोल रहे हैं वो क्रीम है, तो वी से दीज टू एम्प्लॉइज आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड आर द क्रीम ऑफ द क्रॉप. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. इसका मतलब ये नहीं है दूध गिर गया और आप रो रहे हो. इसका मतलब है, अच्छा ये तो सुना होगा ना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. उस ईडियम को हम यही कहते हैं जब आप रिपेंट करते हो, रिग्रेट करते हो और उसका कोई फायदा नहीं है. When you upset about something that has happened and you cannot do anything for that, it means stop crying over a spilt milk. Or I can say, think about the future. Stop crying over a spilt milk.
The next one is hard nut to crack. What is hard nut to crack? अच्छा आपने वो सुना है लोहे के चने चबाना. सपोज करो जो काम बहुत मुश्किल होता है और जिससे लोगों से डील करना भी बहुत मुश्किल होता है, हम उनके लिए यूज करते हैं. दैट अ पर्सन और अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू डील विद. टेढ़ी खीर भी कहा जाता है इसको. सो इफ आई वांट टू से डीलिंग विद हिम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब उससे बात करना, डील करना बहुत लोहे के चने चबाने लायक है. एंड UPSC इज अ हार्ड नट टू क्रैक. जो चीज़ बहुत मुश्किल है, वी कैन यूज इट. इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. फुल ऑफ बीन्स. कुछ समझ आया इससे? Full of beans means full of energy. When somebody is full of energy and enthusiasm and lively, we can use it for them. जो लोग lively होते हैं और energetic होते हैं. We can say Kiara is such a cheerful girl, always full of beans. Or you can also say that I am always full of beans. Means you are always energetic. Let's see the next one. Hot cakes. हॉट केक्स मतलब गरम गरम केक? नो, हॉट केक्स मीन्स जब कोई चीज़ धड़ाधड़ बिकती है ना हैंड टू हैंड, तो हम बोलते हैं हॉट केक. टू बी सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी क्विकली. अच्छा आजकल मार्केट में नाइकी एयर जॉर्डन धड़ाधड़ बिक रहे हैं ना, तो वी कैन से नाइकी एयर जॉर्डन आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स. That's all for today guys. I hope you like the lecture. Don't forget to like, share and subscribe and comment it. Okay, bye.